Hello everyone, welcome to my channel CS Ab Initio. Today we'll study a very important topic of Indian Contract Act, that is consideration. As we have learned in our earlier video that consideration is one of the essential elements of valid contract. So what we'll study in this video? First, what is consideration? Second, kinds of consideration. Third, rules governing the consideration. And fourth, when consideration is not necessary. So what is consideration? Generally, in the terms of contract, we understand that consideration is only paid in the terms of rupees. But it's not the fact. In this video, we can learn what are the things which can form a valid consideration. Kinds of consideration, in what form consideration can be given to form a valid contract. What are the rules governing the consideration, means how a consideration can be given for it being valid, and when consideration is not necessary. Since consideration is an essential part of contract, there are some exceptions to it, and in respect of those contracts which are exempted from this very important rule, the consideration is not necessary. So let's start with the video. Consideration is essential in every contract. So as we have learned in previous video that consideration is one of the essential elements of contract. A contract or agreement without consideration is not valid and cannot be enforceable by law. So how consideration is essential? Suppose A promises B to make a gift of rupees 500 and subsequently he changes his mind. Now in these circumstances, B cannot file a complaint against A that A has breached his promise, because in this case B has not given anything in return, that is any consideration. So the contract between A and B is not valid because there is no consideration flowing from B, and therefore it is merely a promise on part of A and it is not enforceable at law. So when a promise is made for something in return from a promisee, then such promise can be enforced by law against a promiser. अब इस सेंटेंस को एक बार properly analyze करते हैं. It says when a promise is made for something in return from the promisee, मतलब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कुछ प्रॉमिस किया बट ग्रेशियसली नहीं किया, कोई ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए नहीं किया, बट दूसरे पर्सन से, दैट इज प्रॉमिसी, उससे कुछ रिटर्न की एक्सपेक्टेशन में किया. उसी सर्कमस्टांसेस में ये जो प्रॉमिस है उसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सकता है. तभी ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है लॉ के अंडर प्रॉमिसर के अगेंस्ट. सो अगर प्रॉमिसी ने इन रिटर्न कुछ दिया ही नहीं है तो वो प्रॉमिसर के अगेंस्ट इसे एनफोर्स नहीं कर सकते. अब हम आते हैं मेन पार्ट पे, कंसिडरेशन होता क्या है. तो सेक्शन 2 सबसेक्शन डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्क्राइब्स दैट व्हेन एट अ डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, मतलब एक पर्सन जिसने कुछ प्रॉमिस किया और उसकी डिजायर पे प्रॉमिसी या उसके बिहाफ में किसी ने, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing. Such act or abstinence or promise is called consideration. Consideration को हमने define किया when at a desire of promiser, मतलब एक person जो दूसरे person को कुछ promise कर रहा है और उसकी desire से दूसरा person या promisee या उसके बिहाफ में कोई और प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन क्या कर रहा है, हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, मतलब कुछ किया या कुछ ना करने का वादा किया, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, मतलब साथ साथ में वो कुछ कर रहा है या प्रॉमिसर के बोलने पे कुछ नहीं कर रहा है, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब इन फ्यूचर में वो कुछ करने का प्रॉमिस कर रहा है या कुछ ना करने का प्रॉमिस कर रहा है. सो 3 पार्ट में कंसिडरेशन एग्जिस्ट करता है, हैज डन पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में. सो इस तरह के एक्ट और एब्स्टिनेंस को हम बोलते हैं कंसिडरेशन.
तो सबसे पहला एलिमेंट जो था कंसिडरेशन में, कंसिडरेशन मस्ट फ्लो एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिसी कर रहा है, इट मस्ट बी डन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, शुड नॉट बी वॉलंटरी एंड शुड नॉट बी एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी। मतलब प्रॉमिसी या प्रॉमिसी के बिहाफ में तो कोई एक्ट और एब्स्टिनेंस कर सकता है, एज वी हैव सीन इन प्रीवियस स्लाइड, बट अब consideration must flow only at the desire of promisor and not at the desire of third party। अब इसको एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। सपोज ए के घर में आग लगी और बी अपने मन से उसकी हेल्प के लिए भागा, ठीक है। तो यहाँ पे बी ने कोई कंसिडरेशन एक्सपेक्ट ही नहीं किया, तो it is just a voluntary act on the part of B and B cannot ask for consideration or return from A। But suppose A के घर में आग लगी और A ने B को फोन करके बुलाया और रिक्वेस्ट किया कि वो उसकी हेल्प करे, तो यहाँ पर B अपनी मर्जी से नहीं किया, अपनी ग्रैटिट्यूड एक्ट नहीं है B का, ठीक है। तो इन दिस सर्कमस्टांसेस B कैन एक्सपेक्ट अ कंसिडरेशन फ्रॉम A। देयरफॉर a promisee must do something only at the desire of promisor, then only it can be a valid consideration। कंसिडरेशन को प्रॉमिसर की डिजायर से ही करना है, बट सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कंसिडरेशन कर कोई भी सकता है। इट कैन बी डन बाय प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉम, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन किसी के अगेंस्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर रहा है, तो उसका ये एनफोर्समेंट का राइट तभी है जब उसने खुद वो कंसिडरेशन दिया हो, ठीक है। अ पर्सन सीकिंग टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हिमसेल्फ हैज गिवन द कंसिडरेशन। सो अगर कोई पर्सन है हु इज stranger to the consideration, he cannot sue the contract because he was not the person who actually delivered the consideration, who had actually given the consideration, ठीक है। तो stranger to the consideration cannot sue in the contract। अब हम देखते हैं कंसिडरेशन कितने तरह के होते हैं, काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन। As we have seen in definition of consideration, it can be in the form of past act, it can be present, it can be future act। पहला फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन है एग्जीक्यूटरी और फ्यूचर। तो इसमें कंसिडरेशन क्या है? इट इज अ प्रॉमिस टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्ट इन फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रॉमिसेस बी टू मैरी हर इन फ्यूचर आफ्टर 5 years। सो दिस इज अ फ्यूचर कंसिडरेशन और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। जैसे कि अगर ए ने शॉपकीपर को बोला कि वो आज उसे 100 रुपीज देगा एंड शॉपकीपर ने उसको प्रॉमिस किया कि वो जो गुड्स है 100 रुपीज के बदले में वो सप्लाई करेगा नेक्स्ट डे। सो इसमें ए ने जो कंसिडरेशन दिया वो तो एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन था क्योंकि उसने 100 रुपीज दे दिया, बट यहाँ पर जो शॉपकीपर का कंसिडरेशन है वो है प्रॉमिस टू परफॉर्म अ थिंग इन फ्यूचर, देयरफॉर इट इज एन एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। सेकेंड कंसिडरेशन है एग्जीक्यूटेड और प्रेजेंट कंसिडरेशन, जिसमें कोई एक्ट या फोरबियरेंस और वी कैन से एब्स्टिनेंस इज मेड और सफर्ड फॉर अ प्रॉमिस, ठीक है। तो इसमें एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कुछ प्रॉमिस किया और उसके अगेंस्ट किसी पर्सन ने कोई एक्ट या फोरबियरेंस प्रॉमिस किया, बट दैट इज द थिंग टू बी डन इन प्रेजेंट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड और प्रेजेंट कंसिडरेशन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने पहले देखा, ए ने शॉपकीपर को 100 रुपीज दिए, शॉपकीपर ने गुड डिलीवर करने के लिए प्रॉमिस किया। सेकेंड सिनेरियो में प्राइस फॉर द गुड्स इज गिवन ऑन द सेम डेट एंड गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सेलर ऑन द सेम डेट, देयरफॉर दोनों ने अपना कंसिडरेशन सेम टाइम पे परफॉर्म कर दिया, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ एग्जीक्यूटेड और अ प्रेजेंट कंसिडरेशन। थर्ड टाइप ऑफ कंसिडरेशन है पास्ट एक्ट और फोरबियरेंस। इसमें कंसिडरेशन वो एक्ट होता है या वो फोरबियरेंस होता है जो हम पहले ही कर चुके हैं। ये वो कंसिडरेशन है विच इज ऑलरेडी परफॉर्म्ड इन फॉर्म ऑफ एक्ट और फोरबियरेंस। सो एनी एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द कंसिडरेशन विच टुक प्लेस एंड ऑलरेडी कंप्लीट बिफोर द प्रॉमिस इज मेड। मतलब प्रॉमिसी ने कोई पहले से ही एक्ट या फोरबियरेंस कर दिया है, उसके अगेंस्ट में प्रॉमिसर ने उसको कुछ प्रॉमिस किया है। सो इस तरह के कंसिडरेशन को हम बोलते हैं पास्ट act or forbearance। Now we'll see what are the rules governing the consideration। सबसे पहला रूल किसी भी कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए mutuality। A consideration can exist when there is a mutuality and each party to the contract agrees to do something।
सेकेंड रूल है कंसिडरेशन का, दैट कंसिडरेशन मस्ट बी रियल. ये कोई वेग एक्ट या कोई इनडेफिनेट या कोई इल्यूजनरी एक्ट नहीं होना चाहिए. जैसे कि सन ने अपने फादर को प्रॉमिस किया कि वो आगे से कोई न्यूसेंस नहीं करेगा, देन इट इज नॉट अ कंसिडरेशन, इट इज जस्ट अ प्रॉमिस, इट इज अ वेग थिंग. ठीक है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता है. ऐसे ही कोई इनडेफिनेट प्रॉमिस नहीं कर सकता जिसको हम आगे जाके मेजर ही नहीं कर सके. कोई इल्यूजनरी प्रॉमिस भी नहीं हो सकता है, मतलब जो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. और कोई इल्यूजन, जैसे हमने किसी को प्रॉमिस किया कि मैं आपको 10,000 के बदले हिप्नोटाइज कर दूंगा, तो इट इज जस्ट एन इल्यूजन, इट कैंट बी रियल. सो कंसिडरेशन शुड नॉट बी एनी थिंग विच इज वेग, इंडेफिनिट और इल्यूजनरी. फिर कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि एडिक्वेट हो. कंसिडरेशन का एग्जिस्टेंस तो जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बट उसकी एडिक्वेसी जरूरी नहीं है. ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में हम सेक्शन 25 पढ़ते हैं, जो ये बोलता है अगर प्रॉमिसर की कंसेंट फ्रीली गिवन है तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड नहीं हो जाएगा मेरली बिकॉज कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है. सपोज ए ने बी को 1 रुपीज में अपना हाउस सेल करने के लिए बोला, सो यहाँ पे 1 रुपी इज अ वैलिड कंसिडरेशन प्रोवाइडेड दैट A has given his consent without any influence. A का कंसेंट फ्री है अपना हाउस 1 रुपीज में बेचने के लिए. तो कंसिडरेशन की एडिक्वेसी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, कंसिडरेशन इज नेसेसरी. फिर कंसिडरेशन मस्ट बी लॉ. ठीक है, तो कोई प्रॉमिस टू डू एनी काइंड ऑफ क्राइम या कोई इलीगल एक्ट, प्रॉमिस टू कमिट सुसाइड और प्रॉमिस टू कमिट एनी क्राइम, इट इज नॉट अ लॉफुल कंसिडरेशन. तो कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल. अच्छा, कंसिडरेशन कोई ऐसे एक्ट नहीं होनी चाहिए जो प्रॉमिसी ऑलरेडी बाउंड था करने के लिए. ठीक है, तो कोई ऐसी एक्ट जो प्रॉमिसी को ऐसे ही करनी थी एंड वो प्रॉमिसर को प्रॉमिस नहीं कर सकता है कि मैं इस कंसिडरेशन के बदले में ये करूंगा. ठीक है, तो कोई एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, कोई एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ना हो प्रॉमिसर का. तो अग्रीमेंट टू परफॉर्म एन एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन फॉर अ पर्सन to whom the obligation is already owed is not a consideration. For example, A को 2 हाउस मिले इनहेरिटेंस में एंड वो विल के तहत उसमें से एक हाउस उसे B को ऑलरेडी देना था. अब वो A B को ये नहीं बोल सकता है कि मैं आप जो मुझे फ्यूचर में 10 लाख रुपीस देना और उसके बदले में मैं आपको एक घर दूंगा, बिकॉज A was already obliged to give 1 house to B. Therefore, this promise is not a valid consideration. So till now we have studied that consideration is always essential in respect of a contract. But section 25 provides some kind of agreements or some kind of situations where consideration is not necessary and contract will still be a valid contract. Let's see. So section 25 provides an exceptions which make a promise without consideration a valid consideration. पहला सिनेरियो है when a promise is expressed in writing and registered and is made out of natural love and affection between the parties standing in near relation to each other. जब एक प्रॉमिस किया गया है out of natural love and affection, उनके बीच में जिनके बीच में ऑलरेडी कोई नियर रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है और उस प्रॉमिस को राइटिंग में एक्सप्रेस किया गया है एंड रजिस्टर किया गया है अंडर द लॉज रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन. सो वो प्रॉमिस वैलिड होगा इवन दो इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी कंसिडरेशन. सेकेंड सिनेरियो है अगर कोई प्रॉमिस किया गया है टू कंपनसेट द पर्सन हु हैज ऑलरेडी डन और वॉलंटरली डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर. ठीक है, तो प्रॉमिसी ने पहले से ही अपने मन से कोई चीज कर दी है या कोई चीज करने का प्रॉमिस किया है, तो प्रॉमिसर कैन डू समथिंग टू कंपनसेट अ प्रॉमिसी. सो सेकेंड सिनेरियो है अगर प्रॉमिसर किसी को कंपनसेट कर रहा है उस एक्ट के लिए जो उसने ऑलरेडी कर लिया है, या फिर प्रॉमिसर को कोई ऐसा एक्ट लीगली करना था बट वो प्रॉमिसी ने अपने मन से कर लिया है. तो उस सर्कमस्टांसेस में अगर प्रॉमिसर प्रॉमिसी को कंपनसेट करता है इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन और रिटर्न फ्रॉम प्रॉमिसी, इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन. सो थर्ड सिनेरियो है a promise which is made to a person who is charged or his agent is charged
फॉर अ डेट बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन. सो हमने एक पर्सन के बिहाफ पे कोई डेट पे करने के लिए प्रॉमिस किया है जो लॉ ऑफ लिमिटेशन से बार्ड. उस केस में भी इफ देयर इज नथिंग गिवन इन रिटर्न देन इट इज अ वैलिड प्रॉमिस. अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट करते हैं, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी टू प्रूव द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 185. So section 185 specifies a contract of agency is valid even in absence of consideration. फिफ्थ सिनारियो ये है अगर गिफ्ट दिया गया है. सो गिफ्ट के केस में हमें ये भी नहीं प्रूव करना है कि दो लोगों के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन था या गिफ्ट नेचुरल लव एंड अफेक्शन के वजह से दिया गया है या दोनों के बीच में क्लोज रिलेशनशिप था. A gift is a gift. There is no need for a consideration in order that gift to be valid. So this was all about consideration under Indian Contract Act. We have learned about the consideration, what are the rules governing consideration, what are the types of consideration, and the circumstances in which consideration are not even necessary. Thank you so much. Stay tuned to my channel CS Ab Initio for more videos on chapter Indian Contract Act. Thank you so much.